A very good morning, everyone. Welcome again to my class. Yesterday, we have started solving this NCERT exemplar of chapter number 3 and 3.1 we have started, and some of the questions we have completed. Till question number 17 we have completed. If anybody have any doubt regarding the solutions of the questions till question number 17, you can ask. Otherwise, we will move on this question number 18. Yes, beta, any problem? Yes, anyone has any problem? Now, the question number 18 is on your screen. The points whose abscissa and ordinate have different sign will lie in. क्या बोल रहा है कि वो बताना है, क्या बताना है कि you have to find the coordinate in which the abscissa and ordinate have different sign. That means either x will be positive then y will be negative. If y will be positive then x will be negative. तो यहाँ पे देखो ये बना हुआ है जो coordinate x है, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे तो दोनों प्लस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस, राइट, यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस. तो अपोजिट साइन आप देखोगे तो किसमें किसमें है ये, दैट इज कोऑर्डिनेट नंबर 2 एंड दिस वन दैट इज कोऑर्डिनेट नंबर 4. therefore the correct option is second and fourth. Second and fourth option में है, that is option number D. Is it clear to everyone? फिर किसी को कोई कंफ्यूजन है? Friends, is it clear? Yes. Then find the coordinate. ये आपको ग्राफ बना के दिया है फिगर 3.1. What is the coordinate of point P? तो P हमारा यहाँ पे है. This point is P. -2,4. P में आप देखो तो ये यहाँ से 4 यूनिट है एंड यहाँ से इट इज यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इट इज -2, राइट ना. इट इज -2, 4. पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं. The value of x is -2 and the value of y is 4. That's why the correct option is what? -2, 4, which is option number B. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? No. Okay, then move to the question number. Shall I erase this one? Erase करके चलो next पे. Yes, sir. Yes, sir. Then next question number 20. Now you are given figure 3.2. ये downside figure है, मैं ऊपर ले रहा हूँ, आ रहा है. In figure 3.2, the point identified by coordinate -5, 3. इनमें से कौन से पॉइंट का है? -5, 3. तो -5 ये रहा और 3 ये रहा. इट इज पॉइंट L. L. हाँ, ये -5 और ये 3, ये कौन सा पॉइंट हो गया? L, which is option number C. Hope it is clear to everyone. Then question number 21, the point whose ordinate is 4. Ordinate means which value? X axis or y axis? Y. Y. तो y की वैल्यू 4. y की वैल्यू 4 किस पॉइंट का है? नहीं, हाँ, whose ordinate is 4 and lies on y axis. तो ordinate 4 देखोगे तो आप यहाँ पे है. This point का नेम तो दिया नहीं है, तो this will be what? Ordinate is 4. This is 0,4. कैसे लिखेंगे हम? पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू लिखेंगे. तो that's why it is 0,4. Option number B. Any confusion in this one? Question number 21. Solution of question number 21. 0,4 कैसे लिखा? Is that clear to everyone? y की वैल्यू 4 है और Yes. x Yes, sir. y एक्सिस के ऊपर है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 आती है, तो it will be 0,4. In question number 22, which of the points P 0,3, Q 1,0, R 0,-1 and S -5,0 and T 1,2 do not lie on x axis. x axis के ऊपर कौन सा नहीं आएगा? अब x axis के ऊपर कौन सा नहीं आएगा जिसमें y की वैल्यू 0 नहीं होगी? y की वैल्यू 0 कहाँ पे है? एक तो ये x एक्सिस पे आएगा Q, क्योंकि y की वैल्यू 0 है. दूसरा ये x एक्सिस पे आएगा S, क्योंकि y की वैल्यू 0 है. बाकी y की वैल्यू 0 नहीं है, तो P, R और T
जो PRT है वो x एक्सिस पे नहीं आएगा. इज दैट क्लियर? x एक्सिस पे कब आता है? जब y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, then and only then it lies on x axis. Is that clear to everyone? पता है ना ये? y एक्सिस के ऊपर आता है जब x की वैल्यू 0 होता है, x एक्सिस के ऊपर आता है जब y की वैल्यू 0 होती है. तो y की वैल्यू केवल ये q और s में है जो 0 है. अदरवाइज ये 3 पॉइंट है P R T, इनमें y की वैल्यू कुछ ना कुछ है. तो इट इज वेरी क्लियर दैट दीस 3 पॉइंट्स विल नॉट लाई ऑन x axis. That's why in the question it is asked which of the following do not lie on x axis. तो क्या आएगा? P, R and T. Is it clear, students? Yes, sir. Shall I erase this one? Shall we move to the next one? Shall I erase this one? Yes, sir. The next question number 23. The point which lie on y axis. अब यहाँ पे दे दिया कि y axis के ऊपर है, इसका मतलब उसका x की वैल्यू 0 होगी. The point which lie on y axis and at a distance of 5 unit in the negative direction of y axis. Y axis से negative direction में 5 unit है, right? The point which lies on y axis, that means the x coordinate is 0 और y axis पे कितने दूरी पे है वो? नेगेटिव में है, -5. तो इट इज 0, -5. इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए. 0, -5 कैसे आया? क्लियर? हाँ बोलिए. सर नेगेटिव डायरेक्शन. अभी तो -5 लिया ना. नेगेटिव डायरेक्शन y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 0, -5 ना. 0,5 नहीं लिया मैंने. यस सर. हाँ, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन. देखो x की वैल्यू तो फिक्स हो गई 0 है. अब y की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो क्वेश्चन में ही मेंशन किया है कि इट इज 5 यूनिट अवे फ्रॉम द नेगेटिव y एक्सिस, तो -5. यस सर. देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट. अब देखो यहाँ पे y एक्सिस, जब मैंने बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, यदि आपको x एक्सिस से बोला है तो y की वैल्यू देखोगे, y एक्सिस से बोला है तो x की वैल्यू देखोगे. तो x की वैल्यू क्या है इसमें? P 3,4 में. What is the value of x in this point? इसमें x की पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, therefore you have to check this x value. x की वैल्यू क्या है? 3. Therefore the answer is 3. Any confusion in this one? Question number 24. लिख लो फटाफट, और भी क्वेश्चन होंगे तो भी कर लेते हैं. Shall I erase this one? Shall we move to the next one? Yes, sir. और भी क्वेश्चन है इसमें. No, sir, not now. This exercise is completed. Just a minute, we will move to the next one then. As we have completed exercise 3.1, now move to the exercise 3.2 of this chapter number 3, that is coordinate geometry. Question number 1. There is only one question. In that there are 5 subparts, and you are supposed to write whether the statements are true or false. If it is true, you have to justify. If it is false, then also you have to justify why it is false. First one is point 3, 0. Point 3, 0 lies in the first quadrant. Is it true? No, sir. False. False. Very good. Why it is false? So because it lies on x-axis. Because it lies on x-axis. Very good. किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? No, sir. X एक्सिस के ऊपर ही आएगा because the y coordinate is 0. Y coordinate 0 है तो it is very much clear that if the y coordinate is 0, then that point will lie on x axis. And second one, point 1, -1 and -1, 1 lie in the same quadrant. This is also false. False. Why it is false? Because see, as per sign convention, as per Sir, I am also present, Jeena Patel. You have not written in that. where I have not written. In that present absent. I have shared the screenshot.
वो स्क्रीनशॉट में मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैं फिर से देख लेता हूँ, आप बाद में ज्वाइन हुई होंगी, फिर से मैं स्क्रीनशॉट दूसरा शेयर कर देता हूँ। तो एज पर साइन कन्वेंशन, एज पर साइन कन्वेंशन प्लस माइनस एंड माइनस प्लस हैव टू डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, इनके दो अलग अलग क्वाड्रेंट्स होते हैं ना। यदि प्लस माइनस है वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और माइनस प्लस है इट विल बी सेकंड क्वाड्रेंट। ये दो अलग अलग हैव टू डिफरेंट क्वाड्रेंट्स आएगा, डिफरेंट लिखना भूल गया मैं, हैव टू डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। हैव टू डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Then what about this third one? The coordinates of the point whose ordinate is -1/2 and abscissa is 1 are -1/2, 1. True. Ordinate मतलब होता है y की वैल्यू, False. abscissa मतलब होता है x की वैल्यू। हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो xy होता है, बट हियर इट इज रिटन yx। क्या लिखोगे? फॉल्स। why it is false? Because ऑर्डर्ड पेयर, जो ऑर्डर्ड पेयर होता है हमारा वो कैसा होता है, विल बी x, y, but here it is written, here it is written in the form of y, x। ये पॉसिबल नहीं है। हमारा जो सिस्टम है, जो हमने सीखा है, that will be x, y whenever we are representing any point on the plane। First of all we are representing the x value then y value, but here it is written y value then x value, that's why it is false। Is it clear to everyone? Yes, sir. Then the point on y-axis के ऊपर कोई point है and that is distance of 2 units from x-axis। x-axis से उसकी 2 यूनिट की डिस्टेंस है। अब x-axis से 2 यूनिट की डिस्टेंस है, तो ये जो 2 है ये x की वैल्यू होगी कि y की वैल्यू होगी? Y. y की वैल्यू होगी, और यहाँ पे लिखा है 2, 0, तो ये फॉल्स होगा। Yes, sir. 100% Yes, sir. तो लिखोगे यहाँ पे फॉल्स। why it is false? Because 2 units from x-axis means, इसका मतलब क्या होगा? It means it is the value of y, it is the value of y, लेकिन यहाँ पे वो वैल्यू x की लिखी है, that's why it is false। Then -1,7 is a point in the second quadrant। second quadrant में -1,7 आएगा, ठीक है? Yes. True. है इसका। तो एज पर साइन कन्वेंशन क्या लिखोगे? एज पर साइन कन्वेंशन इट इज ट्रू। चलो ये लिख लो फटाफट, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। Moving to the exercise 3.3, very simple exercise। You have given a graph and some of the points are mentioned on that graph। You are supposed to write the coordinates of that point। but P से स्टार्ट करते हैं, बोलो फटाफट। P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 by 1 up to 1,1. 1,1, very good। What about S? 1, 3, 2,1. 1। किसी को कंफ्यूजन होगा तो बोल देना कि ये कैसे आया। फिर Q -3, -1. बेटा -3,0 होगा ना यहाँ पे। Yes. यहाँ पे है, यहाँ नीचे नहीं है, यहाँ ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट मेंशन भी किया है। -3,0 R is -2. -2, -3. -2, -3 जिन्होंने बोला था सही है। What about this T? 4, -2. 4. 4, -2. very good। And O 0,0. 0,0. और कोई पॉइंट बचा इसमें जिसको मेंशन करना बाकी रह गया? No, sir. That's all for this question। If anybody have any question regarding this solution तो आप बोल सकते हैं।
और यदि नहीं है तो we will move to the next solution. Shall we move to the next question? Sir. ये तो प्लॉट करना है आपको. Plot the points and write the name of the figure obtained by joining in order. तो मैं यहीं पे प्लॉट कर देता हूँ. Just a minute. Just plot the point. Just draw two axes, x-axis and y-axis. Question number 2. देखो ये मैंने x-axis बना दिया. -7 भी है. x में y में कितना है मैक्सिमम? 3 चलेगा. बड़ा छोटा मैंने बनाया है, आपको प्रॉपरली बनाना है. इसमें मार्क करते हैं. x का मैक्सिमम वैल्यू है -7 और पॉजिटिव में है 2 से ज़्यादा नहीं है. तो ये 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया. 4 तक मैंने ले लिया. लेफ्ट साइड में जाएंगे. -1 -2 -3 -4. सर x की मैक्सिमम वैल्यू 6 है r में. Yes, sir. क्या बोल रहे हो? 6 है क्या पॉजिटिव में? हाँ सर. 4 लेना पड़ेगा. जस्ट इसको अरेंज करना पड़ेगा. कर देते हैं. इसको हटा तो सकते नहीं. कंट्रोल जेड को कर सकते. है ना? सर ऊपर वाले ग्राफ में ड्रॉ कर दे. क्या बोल रहे हो? ऊपर वाले ग्राफ ऊपर जो ग्राफ. उसमें पता नहीं उतना पॉइंट दिया है कि नहीं दिया है. हम कर लेते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है? वो टाइम है हमारे पास. टाइम ही टाइम है. चलो यहाँ पे 6 तक है तो थोड़ा कम डिस्टेंस लेते हैं. 1 2. आपको 1 सेंटीमीटर लेना है. ग्राफ पे बनाओगे. 3 4 5 और ये 6. यहाँ पे भी 7 कर देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 लिख देते हैं. यहाँ पे -2 -3 -4 -5 -6 -7. y पे कितना है मैक्सिमम पॉजिटिव में? 2 ही है ना? 2. 1. तो बाकी आप बना सकते हो लेकिन यहाँ पे जितना दिया मैं उतना ही बना रहा हूँ. 2 3 और यहाँ पे नेगेटिव में 7 तक कहाँ तक है? -3 है ना? यस. -1 -2 और ये -3 -4. प्लॉट करते हैं. चलो ये मैं चेंज कर देता हूँ. पिंक ले लेता हूँ. तो फर्स्ट पॉइंट इज -3, 2. -3 x का और 2 इसका यहाँ पे आएगा. -3, 2 करेक्ट है ये. -3, 2. किसी को कोई कंफ्यूजन है -3, 2 में? Then this point is P. Then Q is -7, -3. X का -7 और इसका -3. It will come this side, down side. -7, -3. ये हो गया आपका Q. -7, -3. Then R 6, -3. 6, -3 will come here. 6, -3. This point is R. 6, -3. And what about S 2, 2? 2, 2 कहाँ पे आएगा? 2 इसका 2 इसका. 2, 2.
अब ये सबको आप ज्वाइन कर दोगे लाइन के थ्रू. Join all these points through a line. इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो. कौन सा फिगर बन रहा है? आप फिगर देख के ही बता दोगे. बताइए कौन सा फिगर है ये? ऐसा फिगर कभी देखा है कि पहली बार देख रहे हो? यस सर देखा है. हाँ, तो क्या नाम है इस फिगर का? पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम होता है बेटा ये. प्योर. This is not a parallelogram, actually this is a trapezium. Okay, ये आप प्लॉट करो, ये ट्रेपेजियम है. Is it clear? It is a quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel. ये ऐसा quadrilateral है जिसमें ये जो PS है, this is parallel to QR. कि P से लेके यहाँ तक यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये PS और QR में सेम आएगा. तो फ्रॉम द फिगर यू हैव टू राइट फ्रॉम फिगर as PS is parallel to QR, so this implies this PQRS is a trapezium. ये कौन सा फिगर बन रहा है? ट्रेपेजियम बन रहा है. Is it clear to everyone or any confusion is there? सर नो डाउट. तो इसको आप बनाइए ग्राफ पेपर में और मेंशन कीजिए.